Good morning, dear students. Um, Today I am going to do the second part of the chapter, the Toon Town Musicians, chapter number 7 in English, Prose. Now, last week, if you remember, I shared a small story, a Toon movie, to explain the chapter. So, today I am going to read the whole chapter for you and give you just the glimpse, the gist of the chapter. Okay, the gist means the summary of the chapter, and I will also share the answers for the exercises given in the textbook. So you have to just go through the video that I am going to share with you, and in the video I will explain all the exercises, all the activities which are given in the textbook, and I will also give you the PDF, so that PDF or document file, so that you can copy the answers and do your homework. Okay, so let's start. Activity 1. Question number A. Which animals can you see in this picture? So in this picture we see a donkey, a rooster, a dog and a cat. Please put a cross on question number B and on question number D. Exercise C. Do you know how animals are useful to us? You will write answer to this question in your notebook. Speak about their usefulness. Okay, so I'm going to write few answers, few example, the specimen for this answer. You can write whatever you want to write. You have already learned in the first and second standard. Okay, and let's start with the story. Part 1 of Activity 2. Once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. Now, when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." Poor old donkey was very sad. He left the farm and went towards the city. He walked along and he sang, "I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know." As he walked along, an idea came to his head. "I know what I can do. I can go to Toon Town and become a musician." So he walked along. A little later, he saw an old dog asleep on the side of the road. "What's wrong, my friend?" asked the donkey. "My master has thrown me out as I am old and slightly deaf." And the dog sadly said the dog sadly. And he sang. The dog also sang. "I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know." "Why don't you come with me?" said the donkey. The dog liked the idea of going to the Toon Town and becoming a musician. Now they walked together. In activity 3, you must have learned to the animal sounds, the sounds that animal make. Work in pair and draw a line to match each animal with the sound it makes. Now, you are not supposed to sit with your friend or your sibling. You can do this exercise alone. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो बताया है कि कौन सा एनिमल कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन सा साउंड होता है. तो आपको पिक्चर को उसके साउंड के साथ में आपको मार्क करना है, मैच करना है. ओके, let us begin with the part 2 of the story, that is activity 4. On the way they saw an old tabby cat. She was thin and had stripes on her fur. "What are you doing?" asked the donkey and the old dog. "I am too old to chase mice, and my master has thrown me out of the house," said the tabby cat sadly. And she sang, और उसने भी गाना गाया. "I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go.
What will I do? I do not know. सो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स अभी तक हमने देखे हैं वो क्या हो गए हैं, वो सब बुढ़े हो गए हैं। जैसे डोंकी, उसने अपने मालिक को बहुत सर्व किया, लेकिन फिर जब वो बुढ़ा हो गया तो मालिक ने उसको भगा दिया कि अभी तुम्हारा काम ख़त्म हो गया ना, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, तो तुम जाओ। तो वो ओल्ड जो डोंकी था उसको एक आइडिया आया कि हम टून टून टाउन जाएंगे और वहाँ जाके मैं म्यूज़िशियन बनूँगा। रास्ते में उसको ओल्ड डॉग मिला और ओल्ड कैट मिली, जिनका सेम स्टोरी थी। उनके मालिक ने, वो अपना काम अब नहीं कर पाते थे, तो उनके मालिक ने उनको घर से निकाल दिया था। तो डोंकी उनको सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम सब मिलके टून टून टाउन जाएंगे और वहाँ जाके म्यूज़िशियन बनेंगे। तो कैट और डॉग को ये आइडिया अच्छा लगा डोंकी का, और वो भी डोंकी के साथ साथ टून टून टाउन के लिए रवाना हो गए। ये थी अभी तक की स्टोरी। अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। Why don't you come with us to Toon Toon Town to become a musician? Said the donkey. Thank you, said the cat and joined them. So they walked along together. A little later they saw an old rooster. Rooster matlab murga. A little later they saw an old rooster on the road. What are you doing here alone, my friend? Why are you not at your farm? Asked the donkey. My master has thrown me out as I oversleep and cannot get up in the morning, said the rooster. And he sang. अब rooster ने भी गाना गाया. I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. Come and sing with us. We are going to Toon Toon Town to become musicians, said the donkey. I would love to, said the rooster, and so off they went together. ऐसे ही रूस्टर ने भी अपनी कहानी बताई कि अब मैं उठ नहीं पाता हूँ, तो सुबह कुकड़ू नहीं कर पाता हूँ, तो सब लोगों ने मुझे भगा दिया और अब मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं। तो डोंकी ने उसे भी इनवाइट किया अपना ट्रुप ज्वाइन करने के लिए और रूस्टर मान गया। Soon it became dark. They entered a forest and suddenly saw a house. They went near and peeped inside. They saw four robbers matlab chor. They saw four robbers sitting by the fire and eating nice hot food. Let's think of a plan, said the donkey. So together they thought of a plan. Then they got into position and the donkey counted 1, 2, 3, now. They all sang as loud as they could. The donkey brayed, the dog barked, the cat mewed, and the rooster crowed. Then they rushed into the house. Crash! Boom! One robber saw the cat's eyes and yelled, Run! There are two balls of fire. The dog bit a robber and he yelled. क्या हुआ कि ये लोग गाना गाते ये टून टून टाउन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया, तो जंगल में उन्होंने एक घर देखा। घर में 4 चोर बैठे हुए थे। तो डोंकी को एक प्लान आया सूझा और उसने सोचा कि चलो इनको भगाया जाए। तो उन्होंने प्लान किया, तो सब एक साथ घुस गए। डोंकी, रूस्टर, कैट और डॉग चारों एक साथ घर के अंदर घुस गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो जो कैट थी ना, उसकी आंखें देख के पहला चोर चिल्लाया, भागो भागो, 2 फायर बॉल्स आए हैं। ठीक है, यहाँ तो 2 फायर बॉल्स हैं। इतने में डॉग गया, उसने जाके एक रॉबर को काट दिया और वो जो रॉबर था वो ज़ोर से चिल्लाया, रन, देयर इज समवन विथ अ नाइफ। द डोंकी किक्ड अ रॉबर एंड ही येल्ड यानी चिल्लाना, रन, देयर इज़ अ घोस्ट हु हैज़ थ्रोन मी ओवर। जल्दी जल्दी भागो, यहाँ पे तो एक किसी ने मुझे नाइफ से मारा। तीसरा बोला, नहीं भागो भागो, इस घर में भूत है, अभी उस भूत ने मुझे उठा के फेंक दिया। इतने में रूस्टर गया और उसने क्रो किया, कुकड़कू। एंड द फोर्थ रॉबर सेड, रन, समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। And so saying, all 4 robbers ran shouting out of the house. I will sleep by the fire, purred the cat.
I will sleep under the table, said the dog. I will sleep in the barn, said the donkey. I will sleep on the roof, said the rooster. जब चारों चोर भाग गए तो ये चारों एनिमल्स ने अपने अपने सोने की जगह डिसाइड कर ली. एंड सो दे रिमेन्ड इन द हाउस एंड ऑफन सैंग टुगेदर. और इस तरीके से चारों जानवर उस घर में रहने लगे और अक्सर वो गाना गाया करते थे. दे वेंट लेटर टू टून टाउन एंड इवन गेव कॉन्सर्ट्स. और फिर वो वहाँ से कभी कभी टून टाउन जाया करते थे और अपने गाने का सम्मेलन किया करते थे, कॉन्सर्ट्स दिया करते थे. ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ एक्टिविटी 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why did the master throw their animals out? Do you think the masters did the right thing? Where did the animals want to go and why? How did the animals scare the robbers? So यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर मैं शेयर करूँगी. सो पहला क्वेश्चन है कि आपको क्यों लगता है कि उनके ये एनिमल्स के मास्टर्स ने उनको बाहर फेंक दिया. दूसरा, डू यू थिंक द मास्टर डिड द राइट थिंग, कि आपको लगता है कि मास्टर्स ने सही चीज़ करी थी. वेयर डिड द एनिमल्स वांट टू गो एंड वाई, एनिमल्स कहाँ जाना चाहते थे और क्यों जाना चाहते थे. हाउ डिड द एनिमल्स स्केयर द रॉबर्स, अभी उन्होंने ये एनिमल्स ने किस तरीके से रॉबर्स को भगाया, ये आपको लिखना है. फाइन. एक्टिविटी 6. रीड द स्टोरी अगेन एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग वर्ड्स अकर. जैसे ओल्ड, टुगेदर. आपको एक स्टोरी पढ़नी है फिर से और उसमें आपको मार्क करना है कि ओल्ड कितनी बार आया, टुगेदर कितनी बार आया, थ्रोन कितनी बार आया और मास्टर कितनी बार आया. ओके. एक्टिविटी 7. वर्क इन पेयर्स. अब हम क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो देयर इज़ नो वर्किंग पेयर्स, यू हैव टू वर्क इंडिविजुअली. अकेले आपको काम करना है. रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. अगेन यू हैव टू रीड द स्टोरी और आपको ये ब्लैंक्स पूरे करने हैं. द डोंकी हैड वर्क डैश फॉर द फार्मर फॉर डैश. ठीक है. तो आपको स्टोरी में से लाइंस मिल जाएंगी, आपको ये फिनिश करनी है. एक्टिविटी 8. ड्रॉ अ फेवरेट एनिमल एंड कलर इट. आपको अपने पसंद का एनिमल इधर ड्रॉ करना है. आप चाहो तो कोई स्टिकर भी चिपका सकते हो या किसी मैगज़ीन में से या न्यूज़पेपर में से उसकी फ़ोटो काट के भी यहाँ पे लगा सकते हो. अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको उसे कलर भी करना पड़ेगा और नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा एनिमल है. फाइन. नाउ ऑन पेज नंबर 65 देयर आर अगेन 2 एक्टिविटीज़ गिवन. नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट एनिमल. आप जो भी फ़ोटो ड्रॉ करोगे या पेस्ट करोगे उस एनिमल के बारे में आपको यहाँ बुक में जो स्पेस दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 65 वहाँ आपको कुछ लाइंस लिखनी है. ठीक है. अब एक्टिविटी 9. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट एल्डरली पर्सन एंड हाउ दे ट्रीट यू. आपके घर में दादाजी होंगे, दादी होंगी या कोई भी ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, तो कोई भी जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं मतलब ओल्ड हैं उनके बारे में, और वो आपके फेवरेट हैं. जनरली हमारे फेवरेट नाना नानी या दादा दादी होते हैं. ओके. तो आपको उनके बारे में लिखना है कि वो कैसे हैं और वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं. वो आपके लिए चॉकलेट्स लाते हैं या वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं या वो आपको मम्मी पापा की डांट खाने से बचाते हैं, आपके साथ गेम्स खेलते हैं, वो क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. सो एक्टिविटी 9 इज़ कम्प्लीटली डू इट योर सेल्फ. सो एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9 ये आपको खुद से करनी है. इसके आंसर्स मैं नहीं दे सकती, ये डिपेंड करेगा एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड के लिए. ठीक है. All right, now activity 10, this we have already finished in our grammar. It is the collective nouns. ओके. तो आपने बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स सुने होंगे, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ लायन इज़ कॉल्ड अ प्राइड. ठीक है. जब बहुत सारे लायंस एक साथ होते हैं तो उसे हम प्राइड कहते हैं. वैसे ही आपको कुछ और एनिमल्स के बारे में पता करना है, जैसे कि बीस के ग्रुप को क्या कहते हैं, शीप के ग्रुप को क्या कहते हैं, काउस के ग्रुप को क्या कहते हैं, गीस के ग्रुप को क्या कहते हैं. दिस यू हैव टू डू इन योर
टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, यहाँ पे काफ़ी स्पेस दी हुई है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं. फाइन. सो विद दिस आई एंड माई चैप्टर हियर. नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल मीट we will do unit 8 the great hero. Fine. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर्स और उसकी एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जो भी आगे वीडियोस में डालने वाली हूँ वो आप मिस ना करें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस को गो थ्रू करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो.